Today I discuss ring theory. Okay, what is ring theory? Ring theory मतलब देखो group. First we discuss what is algebraic structure. Remember the algebraic structure is the non-empty set with more than one binary operator. Okay, this is algebraic structure. And what is group wide? Group wide is one non-empty set and one binary operation is called group wide. Okay, so ring is also a algebraic structure. Here are two binary operations. Okay, so what is ring? The first definition of ring. Okay, a non-empty set are together with two binary operation. That is, this is also a ring, also a algebraic structure. Okay, so together with two binary operation, addition and multiplication is said to be a ring. If it satisfy the following property. If it satisfy the following property. ओके, ठीक है. तो आर क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम बता रहा हूं. उसके पहले क्या है, आर इज द नॉन एम्प्टी सेट. ओके, एंड टू बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. यू नो, एवरीवन यू नो दैट व्हाट इज ग्रुप. ठीक है, एंड व्हाट इज एबिलियन ग्रुप. ठीक है, तो आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. तो एबिलियन ग्रुप मतलब क्या है, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी आ सकता है. ठीक है, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी है. क्या क्या है, तो हम इसके सामने हम लिख रहा हूं. वन एबिलियन ग्रुप है मतलब फर्स्ट, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल, दैट इज a plus b belongs to r for all ab belongs to r. Okay, this property is called, we know that closure property. Second क्या है, plus is associative property. Okay, that is plus is associative मतलब that is हम लोग बोल सकते हो क्या है, a plus b plus c equal to a plus b plus c for all abc belongs to r. ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये दोनों होल्ड पर जाएगा तो क्या है, सेमी ग्रुप हो जाता है. ओके, थर्ड है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 r क्यों लिख रहा हूं, r का ये है 0 आइडेंटिटी 0 r पे है इसलिए 0 r लिख रहा हूं. ऐसे कोई अगर 0 लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 0 r which is belongs to r, but 0 belongs to r such that a plus 0 r but 0 plus a equal to a for all a belongs to r. ये प्रॉपर्टी को क्या प्रॉपर्टी बोलता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके, एंड फोर्थ क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए व्हिच इज आल्सो बिलोंग्स टू आर such that a plus minus a equal to minus a plus a equal to what is identity 0 r. This property is called inverse property. ठीक है, और हम लोग क्या बोले, आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. तो और एक प्रॉपर्टी चाहिए
abelian property, that is abelian property. A plus plus is commutative, abelian plus is commutative, ठीक है, that is a plus b equal to b plus a for all ab belongs to R, ठीक है. This property is called abelian property or commutative property. ओके, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिंग का डेफिनेशन में R plus is the abelian group, ठीक है. तो R plus abelian group हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्या, 2 नंबर क्या है, सेकंड, R dot is the semi group. R dot is a semi group. और सेमी ग्रुप का डेफिनेशन तो आप याद है, ये बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए. दैट इसके अंदर क्या है, दो है सेमी ग्रुप में, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, a dot b belongs to R, या डॉट है, डॉट इज सेमी ग्रुप, R dot is a semi group, दो ऑपरेशन चाहिए, टू बाइनरी ऑपरेशन, तो a dot b belongs to R for all ab belongs to R. क्लोजर with respect to dot, क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication, okay. And second क्या है, associative property, dot is associative, that is a dot b dot c equal to a dot b dot c, ठीक है, for all a b c belongs to R, okay. ये प्रॉपर्टी को क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये दोनों अगर होल्ड कर जाएगा देन दिस इज कॉल्ड R dot इज अ सेमी ग्रुप, ठीक है. तो R dot सेमी ग्रुप है. और ये 3 नंबर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ठीक है. दैट इज हम लोग बोल सकता हूं a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c, और a plus b dot c equal to a dot c plus b dot c for all a b c belongs to R, ठीक है. then R plus is called, then R plus dot is called ring, इसको डिनोट करता हूं, दो ऑपरेशन है तो R plus dot, उधर क्या बोले थे ग्रुप में G plus का G को एक ऑपरेशन बाइनरी, वन बाइनरी ऑपरेशन, रिंग मतलब टू बाइनरी ऑपरेशन, तो R is called रिंग, ओके, रिंग, ठीक है. तो रिंग का डेफिनेशन और एक बार बोल रहा हूं, अल्टीमेट सी ग्रुप का डेफिनेशन अगर याद है तो कोई टेंशन नहीं है. टोटल क्या है, फर्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी है जे दो ऑपरेशन चाहिए, दैट इज दिस इज फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके. टू ऑपरेशन, वन नॉन एम्प्टी सेट R एंड टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, R प्लस इज एबिलियन ग्रुप. एबिलियन ग्रुप मतलब 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके. तो R प्लस इज एबिलियन ग्रुप. देन R डॉट इज सेमी ग्रुप. तो सेमी ग्रुप मतलब दो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके. एंड डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्लास, दैट इज a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c, एंड और ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ से भी a plus b dot c equal to a dot c plus b dot c, okay. then R plus dot is a ring, okay. next example of ring, okay. example, okay. first of all, which is the trivial ring, then we discuss non-trivial. trivial ring मतलब क्या है, जे ring contain one element only zero is the identity element, okay. क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का जरूरत है ग्रुप में, अगर एक रिंग आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही हो जाता है तो ग्रुप हो जाता है. here dot is a binary operation, but dot is only semi group, that means dot not contain identity element, okay. so dot is semi group, so ring contain only zero is called trivial ring, okay. trivial ring मतलब contain only zero, okay. this ring is called trivial ring. next we example, suppose we know that Z, what is Z? Z is the set of
set of integers. Okay, we know that Z plus is abelian group. In a group theory we discuss Z plus is an abelian group. Okay, so Z plus is an abelian group, and Z dot that is multiplication, plus is the addition, and dot is the multiplication. Z dot is the semi group. Okay, next we know that also the multiplication of integer is distributive over addition. Also multiplication of integers is distributive over addition, over addition, that is a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c for all abc belongs to rz. ओके, therefore हम लोग क्या बोल सकता हूँ, तो रिंग का जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लास का रेस्पेक्ट में एबिलियन होना चाहिए. हियर वी नो दैट z प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, और डॉट का रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए. z डॉट इज ए सेमी ग्रुप, वी नो दैट, एंड वी इट इज क्लियर दैट जे मल्टीप्लिकेशन of integer is distributive over addition, that is a dot b plus कोई भी नंबर ले लो, 2 dot 3 plus 4 equal to 2 into 3 plus 2 into 4 for all abc belongs to z. ओके, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा. सो हम लोग बोल सकते हो z plus dot is a ring. ओके, सिमिलरली हम लोग बोल सकता हूँ q plus, q मतलब रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, q plus dot r plus dot, r is the real number, c plus dot, c is the complex number, is a ring. ओके, तो मतलब हम लोग का ऐसे रिंग का एग्जांपल, ऐसे छोटा मोटा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में बड़ा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं. कम्यूटेटिव रिंग, देखो प्लस जो ऑपरेशन है उसका प्लस का कुछ पाने के लिए और कुछ प्रॉपर्टी बाकी है, जो वो प्रॉपर्टी नहीं मिला उसको, सब कुछ हो गया, एबिलियन प्रूव हो गया, मतलब 5 प्रॉपर्टी बोल गई बस डॉट में. इस बार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. डॉट का रेस्पेक्ट, डॉट सेमी ग्रुप का होके अटक गया, तो डॉट का रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप का बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी, उसके बाद इनवर्स, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग मतलब क्या है, ऑलरेडी तो प्लस का रेस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप है, दैट इज प्लस कम्यूटेटिव है, तो फिर क्यों कम्यूटेटिव रिंग बोला. कम्यूटेटिव रिंग मतलब डॉट का रेस्पेक्ट में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा देन दिस इज कम्यूटेटिव रिंग. ओके, क्योंकि प्लस का रेस्पेक्ट में एवरी प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया, ग्रुप का एवरी प्रॉपर्टी, तो डॉट का रेस्पेक्ट में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. कम्यूटेटिव रिंग मतलब कि सर बोलेंगे सर एबिलियन प्लस का एबिलियन ग्रुप है, तो सर ये कम्यूटेटिव रिंग बोलने का क्या जरूरत है. नहीं, कम्यूटेटिव रिंग मतलब डॉट का रेस्पेक्ट में अगर कम्यूटेटिव हो जाएगा देन दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग, a ring r plus dot is said to be a commutative, if dot is commutative. That is a dot b equal to b dot a for all a b belongs to r. ये है कम्यूटेटिव. ठीक है, डॉट का रेस्पेक्ट में अगर कम्यूटेटिव हो जाएगा देन दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव. नेक्स्ट इस बार हम लोग आएंगे रिंग विद यूनिट एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, आइडेंटिटी खोलेंगे, डॉट का रेस्पेक्ट में ही खोलेंगे. ठीक है, रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है,
रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट বা यूनिटी बोल सकते हो, रिंग विथ यूनिटी বা यूनिट एलिमेंट। ओके, तो रिंग विथ यूनिट एलिमेंट क्या है? तो सर क्लास का रेस्पेक्ट में तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है, कोई बात नहीं। इस बार हम लोग जो भी डेफिनेशन बोल रहा हूँ डॉट का रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये कंडीशन रूल कर जाएगा तो कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव हो जाएगा डॉट प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, if in a ring, if in a ring R, if in a ring R there exists an element, there exists an element suppose 1 R बोल रहा हूँ क्योंकि R में है 1 which is belongs to R such that A into 1R into A equal to A for all A belongs to R, ठीक है। If in a ring there is an element such that this property hold, okay, then R is called a ring with unity element 1. Then R is called ring with unit element, ring with unit element. Okay, here dot 1 is the identity element with respect to dot. 1 is the identity here, 1 is the identity element, 1R is the identity element, is the identity element with respect to multiplication और डॉट जो भी बोल सकते मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस बार तुम लोग एग्जांपल सोचोगे जे कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट বা यूनिटी, इसको यूनिटी भी बोल सकते हो, इसको यूनिटी भी बोल सकते हो, यूनिटी। ओके, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल दो। कम्यूटेटिव रिंग without unity, by unit एलिमेंट, तब यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब आई डॉट का रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी नहीं मिलेगा ऐसे, बट कम्यूटेटिव रिंग होगा, मतलब डॉट का रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो जाएगा। ऐसे कोई एग्जांपल सोचो, देखो जेड प्लस डॉट, इसमें तो कम्यूटेटिव मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आइडेंटिटी। जेड प्लस डॉट में डॉट का रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा। बट अगर हम लोग 2z प्लस डॉट ले ली, 2z प्लस डॉट, 2z मतलब क्या है? व्हाट इज 2z? 2z मतलब सेट 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ओके, 2z प्लस डॉट में ये तो क्लास का रेस्पेक्ट में तो ऑलरेडी ग्रुप होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोले थे z प्लस का सब ग्रुप होगा 2z प्लस, ठीक है। तो 2z प्लस इज द आल्सो ए ग्रुप एंड आल्सो एलिजन ग्रुप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस बार डॉट का रेस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप हो जा रहा है, कोई भी नंबर ले लो 2 और 4, दोनों को ऐड करो 6 मल्टीप्लाई करो, 2 into 4 equal to 6, इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन इवन होगा, और इवन मतलब दिस इज द इवन नंबर ऑफ सेट, इवन इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सेमी ग्रुप हो गया। कम्यूटेटिव तो होगा 2 into 4 तो 4 into 2, कोई बात नहीं है। तो इस बार आइडेंटिटी, इसमें डॉट का रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 है नहीं है, तो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी मतलब 2z प्लस डॉट, एंड नॉन कम्यूटेटिव रिंग ये एक अगर नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। देखो मैट्रिक्स नॉन कम्यूटेटिव अगर बोल देगा तो पहले मेरा दिमाग में जो आना चाहिए वो है मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। ये मल्टीप्लिकेशन का रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास का रेस्पेक्ट में सब कुछ हो गया, क्योंकि एलिजन प्रूव हो गया, बहुत बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन कम्यूटेटिव मतलब जो दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब M2R, M2R मतलब उसका ऑर्डर होगा 2 और जो एलिमेंट है 8 से होना चाहिए। M2R मतलब इसका मतलब है जे सपोज A B C D जो भी है, ठीक है, जहां पर A B C D बिलोंग्स टू R, R मतलब रियल नंबर,
ऑर्डर है 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 और एबीसीडी जो एलिमेंट है वो 8 से आएगा, रियल नंबर से आएगा। ये है मैं कम नॉन कॉम्पिटिटिव, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्पिटिटिव, बट इसका आइडेंटिटी में मिल जाएगा 1001। ये है आइडेंटिटी I2, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये है मतलब ये सब तुम लोग सोचो हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सब और भी तुम लोग एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने का तैयार करो। ओके।